ہے یہ جسے جلا رہے ہو؟ ہاں، اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے؟ دیکھنے دو مجھے۔ تعویذ ہے۔ تعویذ؟ ہاں۔ پھر اسے کھا کیوں رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خدا کا شکر ہے اب مجھے آرام ملا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تجربہ کامیاب رہا۔ تیرا مطلب کون سا تجربہ ہے؟ ہاں، یہ کہ میرا گھوڑا ڈنڈے میں بدل جائے۔ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ تعویذ تھا گھوڑے کو ڈنڈے میں بدلنے کا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھ، یہ گھوڑا یا ڈنڈا؟ آخر یہ تعویذ ایک دن میرے ہاتھ ضرور لگے گا۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے دوری اختیار کر، ورنہ تو اچانک گدھے میں بدل جائے گا۔ ایک دن ضرور میرے ہاتھ لگے گا۔ لوگ کیوں روزانہ اپنے مال و اموال سے محروم ہوں جبکہ تمہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے؟ خدا آپ کو طویل عمر عطا فرمائے میرے آقا، اور آپ کا مقام بہت بلند ہو۔ لوگ بہت خوشحال ہیں۔ کیسے خوشحال ہیں؟ مجھے خبر ملی ہے کہ شہر کے بازار میں چوری ہو گئی ہے۔ لیکن مجرم پکڑا گیا ہے میرے آقا۔ جاننا چاہتا ہوں کہ مجرم کون ہے؟ خدا نے اسے بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے میرے سرکار، لیکن وہ اچانک گمراہ ہو گیا۔ شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ تمہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے۔ جان لینا اگر رعایا کا سکون برباد ہوا تو رحم کیے بغیر تیرے ہاتھ پیر بیچ شہر کے بازار میں کاٹ دوں گا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ رکنا ذرا ساتھ۔ حکم کرے میرے آقا۔ جو کام تمہیں سونپا گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ جب میں اچانک گھر میں گھسا، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ آدھا ٹکڑا وہ کھا گیا اور آدھا اس نے جلا دیا۔ آدھا ٹکڑا کھا گیا؟ کس لیے؟ کہنے لگا کہ تعویذ ہے جناب، جو گھوڑے کو ڈنڈے میں بدل دیتا ہے۔ بے وقوف کو نظروں میں رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابا وہاب۔ کیا پتھروں کو ہٹانے میں تمہاری مدد کروں؟ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں، کہ کیا بات ہے؟ قاضی جنید ضرور میری زمین ہڑپ کرے گا۔ کیا تم خلیفہ تک میری شکایت پہنچا دو گے؟ چل میرے گھوڑے چل۔ کھا میرے گھوڑے، کھا، لے کھا۔ تم نے کتنے عرصے سے پھل نہیں کھائے ابا وہاب؟ جب سے خلیفہ نے میرے سامنے نہیں رکھے تھے۔ جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، کھا لے، کمی پوری کر۔ پھر یہ پورا تھال میرے لیے کافی ہے۔ دھیان سے ابا وہاب، زیادہ پھل کھانا نقصان دہ ہے۔ لیکن میں نے تو یہ خلیفہ سے سیکھا ہے۔ کیا تم تیار ہو اس سال میرے ساتھ حج پر چلنے کے لیے؟
आपके साथ हज पर चलूं? हाँ, हज पर चलो बवाब। तुम्हारा साथ होगा तो रास्ता आराम से कट जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे आका? अपने घोड़े का क्या करोगे? हम अपने घोड़े को भी साथ रखूंगा। नहीं, ये सोच दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा घोड़ा यहीं अस्तबल में रहेगा। नहीं, तुम जिसे चाहो साथ ले जा सकते हो, मैं जिसे चाहूं साथ ले जाऊंगा। अफसोस है तुम पर अब वहाब, खुद को खलीफा से मिलाते हो। क्यों ना मिलाऊं? मुझ में और खलीफा में थोड़ा ही तो फासला है। जानते हो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक मूसा और हारून के ताल्लुक जैसा है। हाँ, हो सकता है वहाब, ऐसा हो सकता है। क्या मैं हज की नियत कर लूं? बेशक। मनासिक के हज जानते हो अब वहाब? लोग जैसा करेंगे मैं वही करूंगा मेरे आका। लोग क्या करते हैं वहाब? जो खलीफा कहेगा मैं भी वही करूंगा। नहीं, तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता वहाब, कोई नहीं पहुंच सकता। जाफर की जमीन अगर तुम्हारी हो जाती है तो अपने घर को और वसी करके इसकी कीमत बढ़ा देना। चाहा था मैंने हकम, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वो कई मुश्किलात में घिरा हुआ है, उसको लालच दो, मकसद हासिल हो जाएगा। तुम्हारी नजर में उस जमीन की क्या कीमत होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 दिनार। 50 दिनार दे दूंगा मैं उसे। यकीनन फिर वो राजी हो जाएगा। अगर वो ना माना तो फिर इस सूरत में उसके हाथ में डंडा दे देना ताकि अब वहाब की तरह गलियों में भागता फिरे। तुम्हारी क्या राय है? क्या हम जल्द अज जल्द अपनी इस जमीन पर खूबसूरत घर तामीर कर लें ताकि सुकून से रहें? हाँ, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली जाफर। सच में दिल से कह रहा हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है और फिर ख्वाहिश भी है तुम्हारी। वक्त बहुत है। मैं तो उस वक्त ही सुकून पाऊंगी जब हमारा ये खूबसूरत घर मुकम्मल हो जाएगा। इसमें परेशान होने की क्या बात है जाफर? क्या तुम इस झोपड़ी में रहने पर खुश हो? कसम खाता हूँ कि अब मजीद तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा जरूर। हुजूर, सब चीजें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हैं। हज का कारवां आइंदा चंद रोज में रवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम भी इस कारवान हज के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपकी गैर मौजूदगी में हुकूमत कौन संभालेगा? तुम? मैं? बैठो इब्न खालिद, बैठो। क्या कभी तुम्हें हुकूमती उमूर की सरपरस्ती नहीं सौंपी? क्यों नहीं हुजूर? क्या माजी में रहा कि उमूर का काम तुम्हारे सुपुर्द नहीं था? हाँ जनाब, ऐसा ही था। क्या मेरे बाप की मौत के बाद तुम निगरान नहीं थे? आपके बाबा का ताबेदार था मैं। ऐसा ही था। फिर इन तमाम सिफतों के बाद पूछते हो कौन रहा है कि उमूर की सरपरस्ती करेगा? लेकिन आपने हुजूर वादा किया था मुझे साथ ले जाने का। लोगों को बगैर सरपरस्त के नहीं छोड़ सकता। तुम और तुम्हारा बेटा जाफर बखूबी इस काम को संभाल सकते हो। मेरे आका रशीद, सुना है कि अबा वहाब को भी आप अपने साथ हज पर ले जा रहे हैं। मैंने सोचा किसी को साथ ले लूं ताकि तन्हाई महसूस न हो और सफर की थकावट भी दूर हो जाए। और फिर इन बातों के अलावा वो मेरा रिश्तेदार भी है। मैं चाहता हूं कि आपकी शान और शौकत बरकरार रहे। अबा वहाब आपकी शान घटा देगा, वो भी हज के मौके पर जहां खास बंदगान खुदा का इज्तिमा होता है। ऐसा हो सकता है। اللهم ارزقني حج بيتك الحرام هذا العام وفي كل عام واجعلني من الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. وصل على نبيك وآله الطاهرين يا أرحم الراحمين يا
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, ये घर मेहमानों के लिए आबाद है। लेकिन मैं तो यहाँ कोई घर नहीं देख खुदा रहा। पर भरोसा है, नहीं है तो बन जाएगा। अगर मैं तुम्हें एक मशवरा दूं तो मान लोगे? काजी का हुक्म अदालत के हुक्म के बराबर है, कैसे नहीं मानूं? यानी तो तुम्हें कबूल है? मकसद बयान करके हुक्मनामा नहीं दोगे? मैंने ये सोचा है जाफर कि इस जमीन को खरीद कर अपने घर के हिस्से में शामिल कर दूं और उसमें एक बाग बनाऊं। खुदा ने खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया है और रबा को हराम। क्या कहते हो? मैंने जो फैसला कर लिया है वो नहीं बदलूंगा। क्या फैसला किया है? यही कि हरगिज इस जमीन को नहीं बेचूंगा। हाँ, अगर मैं 50 दीनार इसके एवज दूं तुम्हें? नहीं। 75 दीनार? नहीं। 100 दीनार? बिल्कुल नहीं। ओ शख्स, मैं 100 दीनार इस जमीन के तुम्हें दे रहा हूँ जिसकी कीमत सिर्फ 30 दीनार से भी ज्यादा नहीं, फिर भी नहीं मानता? मैंने कह दिया कि मुझे जमीन नहीं बेचनी किसी भी कीमत पर काजी साहब। कितना बदबख्त पड़ोसी है। मैं किस बेवकूफ से बात कर रहा हूँ, इसने तो मुझे पागल कर दिया है। जुनैद, हुक्म मेरे आका। क्या तुम समझते हो कि अबा वहाब वाकई पागल है? मैं माजरत चाहता हूँ मेरे आका। ऐसा शख्स जो डंडे पर सवार होकर गलियों में घूमता फिरे, उस पर कोई शक है? मुझे नहीं पता क्या चीज सबब बन रही है कि उस पर शक करूं। कभी कभार तो ऐसे काम कर जाता है कि कोई दानिश्वर भी न कर सके। खुदावंद आपकी इज्जत में इजाफा करे और आपको लंबी उम्र अता करे और अबा वहाब को भी सलामती अता फरमाए। ये बात मुझे हैरान कर देती है कि कैसे एक ही रात में एक फकीह और नामवर आलिम दीन दीवाना बन जाए और लोगों के दरमियान मजाक बन जाए। इस बारे में तुम क्या सोचते हो? अल्लाह ताला है जो सब कुछ बदल देता है लेकिन खुद नहीं बदलता। वही जात कादिर मुतलक है मेरे आका। क्यों बेतवज्जोही से खड़े हो अबा वहाब? मुझे नहीं देखा क्या? क्यों नहीं, देख रहा हूँ। फिर क्यों खड़े हो? रास्ता क्यों नहीं दे रहे कि मैं यहाँ से गुजर जाऊं? रास्ता तुम्हें देना होगा, मुझे अफसोस नहीं। है तुम पर। मैं खलीफा का वजीर हूँ। और मैं खुद खलीफा हूँ। काजी जुनैद को देखा है? कहाँ है वो? जुनैद, क्या चाहते हो कि वो तुम्हें भी गुमराह कर दे? उसके सर पर अमामा और काजी का लिबास जेबतन है अबा वहाब। काश जो तुम कह रहे हो वो उसका अहल होता। देखो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसका मजाक ना उड़ाओ। अगर खलीफा उससे राजी हो जाता है तो फिर वो काजी उल कुज़ात बन जाएगा। अफसोस है उस कौम पर जिसका काजी उल कुज़ात फासिदों में से हो और हुक्मरान बेवकूफों की जमात से। खुदा हमें उनके शर से महफूज रख, खुदाया हमें ऐसे लोगों से दूर रख, खुदाया हमें ऐसे लोगों से निजात दे दे, खुदाया हमें दूर रख। कुछ देर आराम कर लो, आराम कर लो। बस काम खत्म होने को है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। मैं नहीं समझती ये खत्म हो। ये एक लंबा और थका देने वाला काम है। क्या थक गई हो? नहीं, उस तजवीज पर गौर कर रही हूँ। कौन सी तजवीज पर गौर कर रही हो? 100 दिनार वाली। ये जमीन तो 50 दिनार की भी नहीं है। क्या कह रही है औरत? क्या मैं अपने बाप की विरासत बेच दूं? हर्जी क्या है इसमें? हम इससे बेहतर जगह खरीद लेंगे। तुम मुझसे 200 दिनार का मुतालबा करना, वो यकीनन दे देगा तुम्हें। खुदा की कसम 1000 दिनार भी दे तो कबूल नहीं। फिर जो जी में आए करो, जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी विरासत। सिर्फ मौत ही मुझे इससे अलग कर सकती है। तुम्हारे लिए एक तजवीज लाया हूँ ताकि तुम्हारी जबान बंद कर दूं। मैं इस जमीन के एवज तुम्हें 200 दीनार देने के लिए तैयार हूँ। मैं हरगिज ये जमीन नहीं बेचूंगा काजी। ये जमीन मुझे अपने बाबा से विरासत में मिली है, इसीलिए मेरे दिल में इसकी कद्र कीमत है। अफसोस है तुम पर जाफर, तुम 200 दीनार भी नहीं लेना चाहते, जबकि इस जमीन की कीमत 50 दीनार भी नहीं है। जनाब काजी, मैंने आपको बता तो दिया कि इसकी मंजिलत मेरे दिल में है। आखिरी बात, 250 दीनार देता हूँ
اب مخالفت مت کرنا. اس رقم سے جہاں چاہو گھر خرید سکتے ہو, بجائے اس کے کہ یہاں رہ کر تم اپنی بیوی کے ساتھ گھر بنانے کے لیے محنت کرو, جو تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے ناممکن ہے. اب کیا کہتے ہو جعفر؟ آپ جتنا بھی دیں قاضی صاحب, میں پھر بھی اسے نہیں بیچوں گا. تو پاگل ہے اے شخص, میں نے اپنی زندگی میں تجھ جیسا بے وقوف نہیں دیکھا. آخری بات, ہاں ایک بات کان کھول کر سن لے, میں اس زمین کو ایک دن ضرور تم سے چھین لوں گا. اس بات پر اچھی طرح غور و فکر کر لینا. سمجھ میں آئی میری بات؟ شاید تیری بھلائی اسی میں ہے. ابا وہاب, تم کہاں ہو ابا وہاب؟ اوہو, میں جلدی میں ہوں, مجھے جانا ہے. کیا تم نے میری شکایت خلیفہ تک پہنچائی؟ مجھے یاد ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ محل گھروں کو ہڑپ کر رہے ہیں. ہاں یہی, خوب یاد رہا تمہیں. کیا خلیفہ سے تم نے کہا؟ ہاں, دولت مندوں سے اللہ کی پناہ. افسوس اس بات کا ہے کہ محل والے قبر کا نہیں سوچتے. سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں میں جعفر؟ سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں. کیا خلیفہ تک تم نے میری شکایت پہنچائی یا نہیں؟ محلوں کے مالکین کو اپنی قبر کی فکر نہیں. افسوس ہے عوام پر کہ ان کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی ہے. کاش تم قاضی کی مسند پر ہوتے, خدا کی قسم. جعفر کے گھر کا کیا معاملہ ہے جنید؟ لوگوں کے قاضی ہو لیکن اپنے مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. مشکل اس وقت ہوتی ہے میرے آقا جب دونوں جانب کے مدعیوں میں سے ایک بے وقوف ہو. مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے جب سامنے والا بے وقوف خود قاضی ہو. ایسی بات مت کرو وہاب, بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا, میں نے اس بے وقوف سے کہا 250 دینار دیتا ہوں, اس زمین کا جس کی قیمت 30 دینار بھی نہیں, لیکن وہ نہیں مانا. کیا اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں وہ بے وقوف ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ بے وقوف قاضی ہے جو ایسا احمقانہ کام کرنے پر تیار ہو اور جس زمین کی قیمت 30 دینار سے زیادہ نہیں 250 دینار ادا کرے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جو بات تھی وہ عرض کر دی میرے آقا. کیا کہتی ہو پارے؟ رہنے کے لیے کیا تیار گھر خرید لیں؟ یہاں کا کیا ہوگا؟ بیچ دیں گے. بیچ دو گے؟ کس کو؟ قاضی جنید کو. 250 دینار دینے کو تیار ہے. وہ ہرگز اتنی رقم نہیں دے گا. بتایا نا, تیار ہے 250 دینار میں خریدنے کے لیے. سن لی تمہاری بات, لیکن ہم ہرگز یہ زمین نہیں بیچیں گے. تعجب ہے, کل یہ ضد تھی اور آج مخالفت کر رہی ہو. جانتی ہوں تمہارے اندر جو جنگ چل رہی ہے, چاہتے ہو اس کا خاتمہ ہو اور میں تمہاری مدد کروں. میں نے ہر طرح سے تمہاری مدد کی ہے. اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے. میں ہرگز اسے دنیا کے کسی خزانے کے عوض نہیں بیچوں گا. کیا ہوا بابا, تمہارا پیٹ پھولا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے باورچی خانے سے اٹھایا ہے. ہمارے باورچی خانے سے؟ لیکن لگتا ہے ضرورت سے زیادہ اٹھایا ہے. یہ راشن ہے, جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. کیوں اپنی ضرورت کے مطابق نہیں اٹھایا ہے؟ بیت المال سے خلیفہ کی ضرورت کتنی ہے؟ 5000 دینار. لیکن آپ کے خزانے میں 20,000 دینار موجود ہیں. پھر ایسا ہے کہ ضرورت کی رقم اٹھا لو اور باقی چوری کر لو. پھر مجھے لاجواب کر دیا. جو چھپایا ہے وہ سب تمہارا. لاجواب کر دیا. لیکن کیسے جانا کہ میرے خزانے میں 20,000 دینار موجود ہیں؟ میں نے تو ایسے ہی بات کہہ دی تھی, اتفاق سے صحیح نکلی. اب تم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آج رات ہمارے پاس آنے کی کیا وجہ تھی؟ غیر وجہ آنے کا کوئی کھانا نہیں ہوتا. تعجب ہے, پیٹ بھرے ہوئے بندے کا گمان صحیح نکلے.
बताओ फिर हमसे क्या चाहते हो अबा वहाब? महल घरों को निगल रहे हैं मेरे आका। क्या कहा तुमने? देखो, आजाद भैरू हमारे लिए क्या लाया है। अपनी टोकरी भर लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? रुको, खुदाया, ए अल्लाह मेरी मदद कर। जनाबे आली, काफिला खलीफा का मुंतजिर है। अपने घर वालों से खुदा हाफिजी और कुछ गुजारिशात करके आता हूं। अब वहाब कहाँ है? क्या खलीफा मुहतरम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मशवरे पर बहुत गौर किया मैंने। वो यहीं रहेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उससे खुदा हाफिजी करना। उसे बुलवाने किसी को भेज देता हूँ, इत्मीनान रखें। बहुत अच्छा। ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. क्या हुआ जाफर? मेरी मदद करो अबा वहाब, मुझे बचा लो, मैं बहुत खतरे में हूँ। क्या काजी जुनैद को मार दिया? काश ऐसा कर सकता। उसने मेरा घर मसमार कर दिया है, हमें घर से बाहर निकाल दिया है और ये थमा दिया 50 दीनार। कैसे ये काम हुआ? दारोगा शहर की मदद से। आओ जरा देखो क्या किया है उन्होंने। आओ जरा 1 मिनट के लिए रुकना। चलो चलते हैं। अपना ये घोड़ा लेना भूल गया हूँ। मेरा ये घोड़ा। जल्दी करो जाफर, जल्दी करो, दरवाजा बंद कर दो। हुजूर वाला, चलना नहीं है कि? ये अबा वहाब कहाँ है? उसे बुलवाने नहीं भेजा? उसे बुलवाने भेज दिया है। जब तक उससे मिल न लूं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो आपका हुक्म जनाबे वाला। अबा वहाब, अबा वहाब, अबा वहाब, अबा वहाब। क्या तुमने नहीं कहा था कि महल घरों को निगल रहे हैं? ये बातें करने का वक्त नहीं है जाफर। जाओ तुम वहां पहुंचो, मैं उसी जगह तुमसे आकर मिलता हूँ। अगर महलों में रहने वाले कब्र की फिक्र में होते तो इंसानियत अपनी मौत न मरती। लोग ला इलाहा पढ़ रहे हैं जाफर, इसे मजबूती से बांधना है ना। हाँ हाँ, इत्मीनान रखो, पैरों को मजबूत बांधा है कि हिल न सके। इसकी मौत की खबर फैला दी है ना? हाँ, तमाम लोगों में खबर फैल गई है।
इतनी देर क्यों कर दी इब्न खालिद? जुनैद का इंतकाल हो गया। काजी जुनैद? लेकिन वो तो कल शाम यहाँ था। कल रात किसी वक्त उसका इंतकाल हुआ। सिर्फ खुदा है जिसे कभी मौत नहीं आएगी। अब वहाब कहाँ है? उसके कफन दफन के लिए गया है। क्या ये बात मानने वाली है कि अब वहाब काजी जुनैद के जनाजे में शिरकत करे? पता नहीं, मैं खुद जाकर देखता हूँ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुदा तेरी मगफिरत करे जुनैद, खुदा तुझे बख्श दे। अच्छा इंसान था। वजीर साहब आए, करीब से देखें इसे। वजीर साहब, आपका जुनैद मर गया, आपका जुनैद मर गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है? इन दोनों ने। तुम दोनों को इस काम की सख्त सजा दी जाएगी। इसने मुझे इस काम पर उकसाया। क्या ये तुम्हारा काम था बाबा वहाब? खुदा की कसम, इस मर्तबा तुम हारून रशीद की सजा से नहीं बच सकोगे। अब तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा। कैद खाना? कैद खाना? कैद खाना? इंसाफ से फैसला नहीं कर रहे मेरे तुम्हारे लिए यही फैसला है मेरा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर मुझे सफाई की इजाजत दें। तुम क्या कहना चाहते हो बाबा वहाब? कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि काजी जुनैद मर गया है। मैंने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर उसे क्या कब्रिस्तान जो ले जा कुछ रहा हूँ। तुमने ख्वाब में देखा उस पर अमल भी करोगे? इसे बोलने दो इब्न खालिद। हाँ, लेकिन ख्वाब झूठे होते जनाब। जाहिर है अब वहाब, ये कैसे मुमकिन है कि ख्वाब पर अमल करो जबकि तुम्हारा ख्वाब भी परेशान कुन हो? अगर ख्वाब ऐसे होते हैं जो आप कह रहे हैं, तो फिर ये काजी कैसे खुद को इजाजत देता है कि जाफर के घर को वीरान कर दे और उसे अपनी मिल्कियत का हिस्सा बनाए और अपने इस ख्वाब को सच कर दिखाए? फिर किस तरह काजी का ख्वाब सही और मेरा ख्वाब गलत हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा ही है जुनैद? मेरी बात का जवाब दो जुनैद। हाँ, ये सही है मेरे आका। फिर कभी नहीं दोहराऊंगा ये बात। आपकी कसम बोसी करता रहूंगा, वादा करता हूँ। यकीनन नहीं दोहराओगे, इसलिए कि अब कैद खाने में डाल दिए जाओगे। सिपाहियों, इसे कैद खाने ले जाओ। मेरे आका, मैं जाफर का घर खुद ले जाओ बनाऊंगा। इसे। वादा करता हूँ, खुद बना कर दूंगा, वादा करता हूँ। जरूर, ये तुम्हारा ख्याल था। बोलो, इसका कितना इनाम लोगे? 1000 दिरहम। इसे 1000 दिरहम दे दो। जो हुक्म सरकार। मेरा इनाम जनाब जाफर के लिए है, ताकि ये अपना घर बना सके। ये काम मैं करूंगा, तुम नहीं। मेरा इनाम यही है हुजूर कि जुनैद कैद खाने में रहे और ये मजलूम जाफर इस रकम से अपना घर तामीर कर सके। चल मेरे घोड़े, चल 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 मेरे घोड़े, चल चल मेरे घोड़े। देखा इब्न खालिद, मैं क्यों चाहता था कि अब वहाब से खुदा हाफजी करके जाऊं।